Hello everyone. This episode is really interesting because I am telling you something very special जिसे कोई खाना पसंद नहीं करता. Most of the people are saying what is there in that, what are the health benefit, why we should use, why we should cook it, इसका क्या बेनिफिट है. बहुत सारी बातें बोलते हैं. बच्चे तो क्या, बड़े लोग भी इसके बारे में यही बात करते हैं. So mostly 40% of people dislike that. So I just wanted to ask one question. How many of you heard about this कि एनीथिंग यू आर कुकिंग एट होम, ये मत बनाओ, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, या इसको कौन खाता है, इसका क्या बेनिफिट है, व्हाई आर यू कुकिंग दिस, एंड सेम काइंड ऑफ बोरिंग फूड दे आर जस्ट ईटिंग एवरी डे, एंड एनीथिंग व्हिच इज कमिंग इन द मार्केट और व्हिच आर द सीजनल, we should give everything to our children. So yes, dear parents, today I am talking about colocasia leaf, and that is very important. So many of the even adult parents or children are not liking it. It is called arbi ke patte or taro leaves in Hindi. So studies also shows that 40% people doesn't like it. So the real question is that is this really bad? क्या इसका कोई बेनिफिट ही नहीं है, और वी कुकिंग इन अ रॉन्ग वे. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी हम कुकिंग करते हैं हमें राइट वे में करनी है, बिकॉज कोई भी चीज अगर ग्रो हो रही है, नेचर में ग्रो हो रही है, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो उसके हैं ही. सो व्हाट इज इट एंड व्हाई इट मैटर? सो कोलोकासिया लीव जो होता है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ दैट, बिकॉज हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, दादा परदादा के टाइम से इसको खाते आए हैं. सो let me tell you what are the benefit which I studied about it, that it shows that it is fiber rich for digestion is very important, very good for digestion. um, it has iron also, which is useful for strength. It has calcium also, vitamins that support the immunity, so which can improve the gut health, strong bone, and better immunity, and long-term health benefit will be there. So it is very important that we should give all this kind of food to our children. And I know most of the children are not eating that, and people will also say why to cook that and why to use that. But as per me, I think leafy vegetable we should introduce to the children in early age, and lots of leafy vegetable because they are rich, iron rich food. They have calcium, they have vitamins, they have fiber, and which is very important for gut health. And if your child gut health is good, then definitely your child, they will feel that I'm flying. They will be active the whole day. सो कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है कि क्यों नहीं इसको खाया जाता? क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये इचीनेस क्रिएट करता है. जैसे आप खाओगे तो आपकी टंग में इचीनेस हो जाएगा. यस, इट हैपेंस, बट व्हेन यू आर नॉट कुकिंग इन अ प्रॉपर वे. So let me tell you one secret. When you are cooking this, when you are cutting it, use oil, mustard oil in your hand and cut it. And when you are making vegetable, just put some lemon or tamarind into it so that this itchiness will go off. So no fear, and just use the right technique. So children say no to food not because it is unhealthy, not because it is not tasty, but because it's bitter, boring, or badly introduced. So when I tell you that you can make this dish so tasty that everyone in the house will ask, um, when you are making it again, yes, it is possible. So I'll tell you today a simple recipe which I have made at home, and step by step I'll tell you how to make it. As I told you earlier also, I don't have very good camera. I try to make with my phone, and this is very important. So don't skip the video and just watch this recipe till end and try it once, because it is not about that this leaf is not important. It is about आपको हर चीज आपको बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाना है, so that your child will eat each and every food and get all kind of nutrition. So let's start and find out how. तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाना है. ये है क्लासिक चिकन मसाला, गरम मसाला,
चिली, हल्दी, दिस इज़ गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी एंड सॉल्ट। ये सारा मसाला एक बाउल में ले लीजिए और बेसन लेना है हम आपको क्वांटिटी के अनुसार, वट एवर क्वांटिटी यू नीड। ऑल द मसाला यू पुट इन दिस एंड मिक्स इट लिटिल बिट एंड जस्ट मेक अ पेस्ट ऑफ दिस बेसन और ऑल दिस मसाला। और उसमें थोड़ा सा ऑयल ज़रूर डालना क्योंकि इससे उसका टेस्ट बनता है। आप उसमें काली मिर्च भी डाल सकते हो और थोड़ा सा टेमरिंड या फिर ये मैंने पत्ता ले लिया है, उसके ऊपर ये जो पेस्ट मैंने बनाया था उसको हम इस तरह से स्प्रेड करेंगे। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको पूरे पत्ते पे अच्छी तरह से इवन तरीके से इसको इस पे स्प्रेड करना है। इसमें हम कोई भी अनियन, गार्लिक ये कुछ नहीं डालते हैं। इसमें सिर्फ बेसन, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और मसाला। अगर आप गरम मसाला या चिकन मसाला या कोई भी मसाला डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। इससे टेस्ट ही बनता है क्योंकि आप इसे बिना किसी सब्जी बनाए भी खा सकते हैं। आप दूसरा पत्ता लीजिए, उसे उल्टा रखिए। उल्टा रखने के बाद उस पर भी उसी तरह से बेसन अप्लाई करिए। इसी तरह से आप 3-4 पत्ते लेंगे और उनके ऊपर एक के ऊपर सीधा, एक के ऊपर उल्टा बेसन अप्लाई कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे पास बहुत अच्छे कैमरे नहीं है, मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ, तो आपको शायद वीडियो बहुत अच्छे से नहीं मिल रहा है, पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत ही सिंपल रेसिपी होती है। आपको बस बेसन को अच्छी तरह से अप्लाई करना है। अभी मैं ये वाटर रख दी हूँ, मुझे इसे स्टीम करना है। ये स्टीमर है, मैं नीचे वाले पतीले में वाटर रखती हूँ और ऊपर स्टीमर रखती हूँ। ये मैंने रख दिया है ताकि ये गर्म हो जाए, तब तक मैं इसे तैयार करूँगी। ये इस तरह से फ़ोल्ड करके तैयार हो जाता है और हम इसे स्टीम करने के लिए रख देंगे। जब तक ये स्टीम होता है मैं आपको एक ये पूरा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैं अभी एक बार फिर से बेसन बना करके फिर से इसके पत्तों पे कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊँगी। तो इस तरह से मैंने एक पत्ता सीधा, एक उल्टा उसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। बेसन बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए और उसकी क्वांटिटी भी अच्छी तरीके से होनी चाहिए ताकि वो एक साथ सेट हो जाए। जब आप उसे फिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं तो उसके लिए आप टूथपिक यूज़ कर सकते हैं। अभी एक-एक करके आप हर पत्ते को इसी तरह से बेसन अप्लाई करिए। साइड बाय साइड वो स्टीम भी हो रहा है। अभी इसे ऐसे फ़ोल्ड करना है, 1 फ़ोल्ड फ्रॉम लेफ्ट साइड, 1 फ़ोल्ड फ्रॉम राइट साइड और उसके ऊपर भी आपको बेसन अप्लाई करना है ताकि वो स्टिक हो जाए। अभी मैंने कैमरा की सेटिंग थोड़ी प्रॉपर की है इसलिए आपको अच्छे से दिख रहा है। लास्ट टाइम वो बहुत प्रॉपर नहीं हो पाया था। आपको इस साइड से फ़ोल्ड करना है क्योंकि इस साइड इसमें कट लगाना है। आपको एक छोटा-सा जो हार्ड है उसे कट कर देना है स्टेम को। क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा-सा टैमरिंड डाला है तो ये बिल्कुल भी आपको ईचिंग नहीं करेगा। आप इसे बिना फ्राई करके भी खा सकते हैं। इस तरह से दूसरी साइड से फ़ोल्ड कर दीजिए। इसका एक बहुत ही अच्छा फ़ोल्ड होना चाहिए और उस फ़ोल्ड को सेट करने के लिए आप टूथपिक यूज़ कर सकते हैं। आप जितना मसाला यूज़ करना चाहते हैं उतना मसाला यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत कम मसाला यूज़ करते हैं और कुछ लोग बहुत थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। आप अपने स्वाद के अनुसार उसमें डाल सकते हैं। दोनों तरफ से इसे फ़ोल्ड कीजिए। अभी फ़ोल्ड को सेट करने के लिए आपको टूथपिक यूज़ करने हैं। ध्यान रहे कि बेसन इक्वली स्प्रेड होना चाहिए और प्रॉपर्ली स्प्रेड होना चाहिए, अदरवाइज़ कहीं-कहीं पे ये पत्ता ही रह जाएगा। तो बेसन एंड पत्ते का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए।
इसमें मैं अब टूथपिक लगा दूंगी ताकि ये सेट रहे। ये हमारा दूसरा पतोड़ा रेडी हो गया है। इसको हम पतोड़ा बोलते हैं हिमाचल में। सो इसको हम कट करके यूज करेंगे, अच्छे से बॉईल करके इसको, और स्टीम करके, नॉट बॉईल करके। अभी इसे मैं साइड में रख दूंगी। अब हम चेक करते हैं कि दूसरा जो पतोड़ा है कैसा बना। अभी आप देख रहे हैं कि टूथपिक बाहर आई है। सारी टूथपिक निकाल करके हम इसे थोड़ा कट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कट करके ये कैसा हुआ है, अंदर से पका है या नहीं पका है। एक्चुअली मैंने पत्ते पहली बार मंगवाए थे तो बहुत ज़्यादा पत्ते आ गए थे, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा ही बना दिए। सो इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, लेयर बाय लेयर। तो इस तरह से ये बनेगा। अभी आप इसको कट करके, स्मॉल स्मॉल पीसेस कट करके, इसको फ्राई करके आप ग्रेवी बना करके उसमें खा सकते हैं। आप इसे एज ए पकौड़ा भी खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होता है। ये सारी टूथपिक आपको निकाल लेनी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको इसको फ्राई करना है। उसके बाद आप ग्रेवी बना करके इसको खा सकते हैं। आप ऐसे फ्राई करके भी इसको खा सकते हैं और ग्रेवी बना कर भी इसको खा सकते हैं। ये इस तरह से दिखेगा। आई होप मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ कि किस तरह से बनाना है। मेरे वीडियोस बहुत क्लियर नहीं होंगे क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे कैमरे नहीं है, मेरे पास कोई कैमरामैन नहीं है कि जो मुझे शूट कर सके। जब मैं बना रही हूँ, मैं कैमरा सेट करती हूँ अपना फोन का और फिर मैं वीडियो बनाती हूँ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। एंड इफ यू फील दैट ये रेसिपी मुझे समझ नहीं आई है, मुझे अच्छे से आप बताओ, और I'll write this recipe in description box, or I will you just message me, I'll send the recipe to you. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट थिंक कि इस पत्ते से मुझे क्या मिलेगा या मेरे बच्चों को क्या मिलेगा। बिलीव मी पेरेंट्स, दीज आर फाइबर रिच। इनमें बहुत सारा आयरन भी होता है, कैल्शियम और विटामिन भी होते हैं, सो जो कि बच्चे की गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको पता हो कि गट हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्थ, अगर आपके बच्चे की गट हेल्थ अच्छी है तो उसका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। एंड आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। आपने कितनी बार बनाई, या आपके बच्चों को पसंद आई, या लोगों ने आपसे बार बार बनाने को कहा या नहीं कहा, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं इस तरह की रेसिपीज ला रही हूँ जो कुछ नहीं खाते हैं लोग, उन्हें लगता है कि ये यूजलेस चीजें हैं। आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल पीपल कि कोई भी चीज यूजलेस नहीं होती अगर उसे राइट वे में बनाया जाए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह से आप बनाते हैं और क्या मेथड यूज करते हैं, एंड हाउ यू आर मैनिपुलेटिंग योर चाइल्ड टू ईट दिस। So tell the benefit and just give them first and then tell this is this and how you can eat this. थैंक यू सो मच। एंड जरूर बताइए मुझे कमेंट में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और आपकी साइड में अगर ये रेसिपी बनाई जाती है तो कैसे बनाई जाती है और इसे क्या नाम से पुकारा जाता है। थैंक यू सो मच।